from ideals to the ideas, how to take it forward. And since it is a School Connect program, it just struck me, one of my very good friends and a kind of a mentor. Even senior secondary school students, after their class 12 exams, 17-18 को UPSC का इम्तहान खत्म हो जाएगा, 17-18 अप्रैल को, they can even think of creating a web portal for their schools at least. My friend is Nikhil Pant, and he has championed this approach of linking up schools from Dehradun to Delhi to all across. So probably Director Ma'am can think of making BNCT as a nodal center for creating such a project where their BTech third year students and some younger chaps can get engaged and do some meaningful project with these Lucknow के जो हमारे 300-350 schools हैं, they can come on a single portal and we can take it forward. So I was told like VC sir has to leave, he is waiting for so I have got it. So just we are reaching the last lap of our session. India has the potential to grow into a knowledge industry worth 20 million plus professionals from the current 2 million. And during the, this is from Mr. Vishnu R. Dusad, CEO and MD of Nucleus Software. And during the Pan IIT conclave in October at Greater Noida, Sam Pitroda said that government has to spend 20 billion in IT sector in the next 5 years. We just concluded a quantitative survey as to how many graduates would be coming out of UPTU alone in 2011. So just from 62 colleges, sir, the quantum was 22,088 students coming over. So out of it, 92,593 BTechs, 23,490 MBAs, 8,651 MCAs, 6,390 B Pharmas, completely like 1,32,498 complete installed seats are there. So now how to take these ideas of synergizing things with the wider developmental mandate, how to implement it and institutionalize it in the university curriculum framework, where we already have a 2-month, 8-week internship project and a 8-month BTech final year project. It is very starting, like we cater to the world's half of the IT servicing requirements, but at the same time we are the second largest importer of arms and spent 50 billion on defense purchases. Now all the top-notch technology developments are eventually done in space programs. So I would request Professor Kripa Shankar to please deliver his address, implementing the ideas for realizing the ideal of technical education, training, internships and projects. Sir. Thank you. First of all, on behalf of the Gautam Buddha Technical University, because I'm the Vice Chancellor of the university to which this particular college is affiliated, I would like to welcome Mr. Bhusreddy and Mr. Sir to this program. As far as the topic is concerned, I think you have heard enough. There is not much to be said because the temperature outside this room definitely is not the same what you are experiencing here. अगर आपको थोड़ा सा पहले शक रहा हो कि किस बात पर आज आपको बुलाया गया है, कनेक्ट क्या चीज है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा कि करियप्पा, चंडीगढ़, अमेरिका, मैसूरियन, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्रीकल्चर, देखिए कितनी बड़ी परिक्रमा हो गई इसमें, कितने किलोमीटर्स और कितने डायमेंशंस इसमें बदले हैं. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसी को कनेक्ट करते हैं और शायद इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि ये कनेक्शन है, ये कनेक्ट है, कैसी चीजें कनेक्ट होती हैं और कितना प्रभावशाली रूप से कनेक्ट होता है. अगर थोड़ा सा और पहले
के व्याख्यान पर अगर आप ध्यान दें, मित्तल साहब ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उसका दूसरा रूप रखूंगा, थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन है वैसे। केंटकी फ्राइड चिकन आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर चेन है पूरे विश्व में, जो कि केवल चिकन का फ्राई करके वो बेचती है। अपने को सक्सेस बनाने के लिए वो खुद चिकन को ग्रो करते हैं। उनके बहुत सारे फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर कि वो कोई खास किस्म के तरीके से उसको करते हैं। इसी तरह से आपने फ्रांस की वाइन्स, शराब जो वाइन कैटेगरी का होता है, उसको आपने सुना होगा। वो अंगूर दूसरे से नहीं खरीदते, वो अंगूर खुद ग्रो करते और वो किसी खास क्लाइमेट में किसी खास तरीके से। खैर संदेश ये है सब मिलकर के कि अगर हमें अपने को आगे ले जाना है, हम कोई संस्थान को आगे ले जाना है, तो बहुत आवश्यक है कि हम कुछ इस तरह से अपने आप को कनेक्ट करें अपने आसपास के स्कूलों से, और उसी मकसद से आपको यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है कि प्रश्न यहाँ नहीं, इसमें नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और वहां से शुरू कर रहे हैं और डिग्री बढ़ गई और वहीं पर समाप्त हो जाता है। शायद आशय यह है कि दायरा चूंकि इतना बड़ा है और होना भी चाहिए कि आप जो लोग आपके यहाँ आने वाले हैं संभावित रूप से ऐसे स्कूलों में जा करके उनको अपने साथ रख करके उनको प्रेरित करें इस तरह की तकनीकी शिक्षा के बारे में। ये आज का मुख्य विषय है। बहुत से संस्थानों ने करना शुरू कर दिया है विश्व में और देश में भी अपने, जिन्होंने की कुछ इस तरह के अपने से पहले वाले संस्थाओं को अपने साथ कनेक्ट कर रखा है। मैं आईआईटी कानपुर से आता हूँ, जो मुख्य रूप से वहां पर भी इस तरह की प्रथा शुरू हो गई है, जिसमें कि और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विशेषकर एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऐसा महसूस होने लग गया कि केवल एडमिशन की नोटिस देने से एप्लीकेशन का पूरा काम नहीं होता है। हम जा करके हर कॉलेजेस में अपने को बताएंगे अपने बारे में कि हम पीएचडी क्या कराते हैं, पीएचडी होती क्या है और क्यों आपको करना चाहिए। ये बहुत ही सफल प्रयास रहा है और विशेषकर हमारे वहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इतने अच्छे अच्छे लोग प्रेरित होकर के जॉब छोड़ करके पीएचडी करने के लिए आ गए कि ये बहुत ही अच्छा सफल प्रयास रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम कनेक्ट करें अपने और उस जगह से जहां से कि हमको अपना इनपुट मिलने वाला है। इसी तरह से एक दूसरा एंड भी होता है कि जब हम शिक्षा दे लेते हैं मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए और सारी चीजों के लिए, तो इसी तरह से दूसरे तरफ भी हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम इंडस्ट्री से उनको अपने को संबंधित रखें और उनकी आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुकूल हम अपने को बनाएं और यूनिवर्सिटी को भी टाइम टू टाइम बताते रहें कि इस तरह की विचारधारा चल रही है इंडस्ट्री में और उसके अनुकूल तरह तरह की चीजों को मुहैया कराई जाए। तो आपके दाहिने हाथ को भी आपने कनेक्ट कर लिया और आपने बाएं हाथ की तरफ भी कनेक्ट कर लिया और आजकल की भाषा में इसको हम एक वैल्यू चेन या सप्लाई चेन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या वैल्यू चेन मैनेजमेंट का एक औपचारिक नाम भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो आज इस विषय पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और इससे और ज्यादा कहना हमारे लिए मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो जो भी सांद्रता और कंसंट्रेशन जो मिस्टर भूस रेड्डी और मित्र साहब से बना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं करना चाहता है सर। और आज जो सबसे अच्छी बात हमको सार्थक बात लगी और जो मैं औपचारिक रूप से उसको मैं ग्रहण करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मिस्टर भूस रेड्डी को भी, जिन्होंने इतना प्रेरित किया यूनिवर्सिटी को और कॉलेज को और बाकी और सारे कॉलेजेस को कि आप इंटर्न्स सेलेक्ट करिए। आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि वो समर में आकर के या किसी वेकेशन पीरियड में आकर के अपना काम करें, सीखें, उससे सभी का फायदा होगा।
और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और मैं यूनिवर्सिटी स्तर पर इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अंत में मैं अपनी तरफ से UPTU आज को धन्यवाद देना चाहूँगा। शुरू से जब मैं आया वाइस चांसलर होकर के यहाँ पर, तो पहली मुलाकात हमारे इन्हीं लोगों से हुई। इसलिए हुई कि इन्होंने कुछ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स बताए हमको कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, और तभी से ये संबंध शुरू हुआ। और आज एक एजुकेशन के जर्नलिज्म में इन्होंने जो इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और उनके साथ रहने का हमको सौभाग्य भी मिला है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे के अंदर की जो कमियां हैं वो कनेक्ट तो करते ही रहें और बात बीच बीच में हमको बताते भी रहें, तो ताकि हम अपना रास्ता उस हिसाब से बना रखें। और अंत में मैं BNC